فیسکو شہری علاقوں سے 11 KVA کی تاریں ہٹانے میں ناکام، فیسکو کی نااہلی ایک اور جان لے گئی۔ ضیاء الحق شہید کالونی میں 11 KVA کی تاروں سے کرنٹ لگنے سے نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ 14 سالہ محسن کو گھروں کے اوپر سے گزرتی تاروں سے کرنٹ لگا۔ فیسکو کے مطابق نوجوان لوہے کے راڈ سے کبوتر اڑا رہا تھا، جس سے کرنٹ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا فیسکو شہری علاقوں سے 11 KVA کی تاریں ہٹانے میں ناکام، فیسکو کی نااہلی ایک اور جان لے گئی۔ ضیاء الحق شہید کالونی 11 KVA کی تاروں سے کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق، 14 سالہ محسن کو گھروں کے اوپر سے گزرتی تاروں سے کرنٹ لگا۔ فیسکو عرصہ دراز سے 11 KVA کی تاریں نہیں ہٹا رہا، ایسا کہنا ہے شہریوں کا۔ نوجوان لوہے کے راڈ سے کبوتر اڑا رہا تھا، جس سے کرنٹ لگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے۔ اویس، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیسکو شہر میں آباد علاقے سے 11 KVA کی تاریں ہٹانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ ضیاء الحق شہید کالونی جو شیخو پورہ روڈ ڈویژن کا علاقہ ہے، وہاں پر نوجوان جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ گھروں سے گزرتی تاروں سے کرنٹ لگنے سے 14 سالہ محسن جو ہے وہ موقع پر دم توڑ گیا ہے۔ سٹی 41 نے کرنٹ لگنے کی جو فوٹیج ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں 14 سالہ محسن کی کرنٹ لگنے سے موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ فیسکو عرصہ دراز سے 11 KVA کی جو تاریں ہیں وہ گھروں سے نہیں ہٹا رہا، جس کی وجہ سے ناخوشگوار واقعات اور رونما ہو رہے ہیں۔ فیسکو میں یہ کرنٹ لگنے سے شہری کی کرنٹ لگنے سے موت کا جو ہے وہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم 12 مرتبہ رپورٹ کر چکے ہیں۔ فیسکو 11 KVA کے نیچے آباد علاقوں سے متعلق پالیسی بنانے میں سست روی کا جو شکار ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ فیصل آباد میں بیشتر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر لوگوں کے گھروں کی چھتوں سے جو ہے وہ 11 KVA کی تاریں گزر رہی ہیں، اور بالخصوص ملٹ ٹاؤن سب ڈویژن میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر 11 KVA کی تاریں لوگوں کے گھروں سے گزر رہی ہیں، جس سے آئے روز ناخوشگوار واقعات اور رونما ہو رہے ہیں۔ اور شہریوں کی بات پر فیسکو کو جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی تیار کرنا ہوگی تاکہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ ضیاء الحق شہید کالونی کا یہ 14 سالہ محسن نوجوان تھا، جو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے انتہائی جو ہے وہ خوفناک مناظر ہیں کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جو ہے وہ دم توڑ گیا، جس میں علاقہ مکینوں میں بھی خاصا 11 KVA تاروں کی وجہ سے خوف و ہراس ہے کہ کرنٹ لگنے سے ناخوشگوار واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس سے متعلق علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 12 مرتبہ فیسکو کو حکام کو آگاہ کیا جا چکا ہے، درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فیسکو کی جو انسپیکشن ٹیمیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عملہ ہے جو 11 KVA سے متعلق قانون سازی کرتا ہے، وہ بھی ہمیں یہاں پر سست روی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ فیصل آباد شہر بھر میں 11 KVA سے رہائش گاہیں کیسے تعمیر ہوتی ہیں، دیگر جو اس سے متعلقہ جو محکمے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں 11 KVA کی تاروں کے پیچھے جو ہے وہ آباد ہو رہی ہیں، اور کن اداروں کی جو ہے وہ یہ سستی ہے، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، ان کو اس سے متعلق قانون سازی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو کو بھی جو ہے وہ 11 KVA کی تاروں کے پیچھے جو آباد علاقے ہیں ان سے متعلق جو مزید منصوبہ بندی ہے وہ سامنے لانی ہوگی، تاکہ اس طرح کے جو افسوسناک واقع ہیں، ناخوشگوار واقعات ہیں، ان سے بچا جا سکے، شہریوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے۔ دوسری جانب فیسکو کام کا یہ کہنا ہے کہ 14 سالہ محسن کی جانب سے کبوتر اڑانے کے لیے لوہے کے راڈ کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے 11 KVA سے اس کو کرنٹ لگا اور وہ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد کے تھانہ وومن پولیس کی کارروائی، بیوی کو تشدد کرنے والا نشانہ بنانے والا شوہر گرفتار کر لیا گیا۔ گرو نانک پورہ کی رہائشی رفت بیوی کو شوہر یاسین نے راڈ سے پیٹا۔ ملزم یاسین نے کسی دوسری عورت کی وجہ سے بیوی کو تشدد کر کے زخمی کیا۔ متاثرہ خاتون رفت بیوی کی درخواست پر تھانہ وومن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس واقعے کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں تھانہ وومن پولیس نے بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر دھر لیا۔ گرو نانک پورہ کی رہائشی رفت بیوی کو شوہر یاسین نے راڈ سے پیٹا۔ ملزم نے کسی دوسری عورت کی وجہ سے بیوی کو تشدد کر کے زخمی کیا۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر تھانہ وومن پولیس نے مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو حوالات منتقل کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد کے تھانہ وومن پولیس کی کارروائی، بیوی کو تشدد کا نشانہ بنانے والا شوہر گرفتار کر لیا گیا۔ گرو نانک پورہ کی رہائشی رفت بیوی کو شوہر یاسین نے راڈ سے پیٹا۔ ملزم یاسین نے کسی دوسری عورت کی وجہ سے بیوی کا تشدد کر کے زخمی کیا گیا۔
फैसलाबाद में मोटरसाइकिल रिक्शों को रजिस्टर्ड करने का फैसला, 15,000 रिक्शों की कैटेगरी तब्दील करने के लिए इक़दाम जारी। कैटेगरी तब्दील करके रूट भी जारी किए जाएंगे। सेक्रेटरी आरटीए, एक्साइज और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रोड मैप तय कर लिया। सीटीओ मकसूद अहमद लोन कहते हैं रूट परमिट की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद किया जाएगा। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मोटरसाइकिल रिक्शों को मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए उनको रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जबकि आरटी सेक्रेटरी और ट्रैफिक पुलिस को भी इक़दाम उठाने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार होगा इस मामले में, इस पर हम बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि इनको किस तरह रजिस्टर किया जाएगा, स्ट्रीम लाइन में लाया जाएगा और आप क्या समझते हैं कि ये तमाम सर अमल मुकम्मल होने के बाद ये जो ट्रैफिक के बहाव में ये रुकावट बनते हैं या हादसा का बायस बनते हैं उनमें कमी होगी? देखिए जी, इस वक्त जो सर्वे किया गया है शहर फैसलाबाद तकरीबन 15,000 के करीब ये मोटरसाइकिल रिक्शा चल रहे हैं। तो ये बाकायदा एक्साइज वालों ने सर्वे करवा लिया है। उस दिन हमारी मीटिंग भी हो गई है, सेक्रेटरी आरटीए और एक्साइज ईटीओ साहब के साथ हमने एक मीटिंग की है। तो जो ही ये इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करेंगे, इनको क्योंकि कन्वर्ट करेंगे ये पीएसवी, चूँकि चांद गाड़ी जो कन्वर्ट हो जाएगा और बाकायदा सेक्रेटरी आरटी की तरफ से इनके रूट मुकर्रर किए जाएंगे। अब तो देखिए इनका कोई रूट नहीं, जहाँ दिल करता है ये चले जाते हैं, सरगोदा रोड पे, जंग रोड पे, समुद्री रोड पे, कोई इनका रूट नहीं है। तो जब ये किसी नेटवर्क में आ जाएंगे इनके बाकायदा रूट जारी होंगे और रूट पे इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट के लिए ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करेगी और ये रिक्शों को बाकायदा हम लोग इनके जो भी रूट होंगे अगर कोई उसकी वायलेशन करेगा तो उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर सेक्रेटरी आरटी और एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से सर्वे मुकम्मल किया गया है। 15,000 के लगभग फैसलाबाद में ये मोटरसाइकिल रिक्शा जात चल रहे हैं, मगर अभी तक इनका रूट कोई नहीं है। इनको रजिस्ट्रेशन का अमल दीगर प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद इनको पीएसपी में तब्दील किया जाएगा, इनका कैडर चेंज किया जाएगा, जिसके बाद इनको रूट की फराहमी भी होगी और रूट फराहमी के बाद ये अपनी डोमेन में रहकर रूट के मुताबिक सिर्फ सफर कर सकेंगे। उनका कहना था कि अगर रूट बनने के बाद जो ट्रैफिक का बहाव जिसमें ये रुकावट बनते थे। तो ये मकबूल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नादहिंदगान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद में 10,000 से ज्यादा जायदादों के मालिकान को अदम अदायगी पर नोटिस भिजवा दिए गए। हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान को अदम अदायगी पर जुर्माने और जायदाद कर्ज की जाएगी। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से नादहिंदगान और डिफ़ॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तमाम माली साल के जो नादहिंदगान हैं और गुज़िश्ता सालों के डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको अब एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में हज़ारों डिफ़ॉल्टर्स और नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतलका शहरी अपनी जायदाद पर जो आयद प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी फौरी तौर पर अदायगी करे। बसूरत दीगर एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से हर महीने मजमूई टैक्स का 1% के हिसाब से जुर्माना जो है वो मुतलका जायदाद के मालिक को आयद किया जाएगा, जबकि उसके साथ साथ दिसंबर इख्तिताम होने के बाद 1 जनवरी से जो डिफ़ॉल्टर्स और नादहिंदगान हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की तालाबंदी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक। उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तोबा टेक सिंह ने फेस्को ने रेलवे स्टेशन की बिजली काट दी, पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। मुसाफिरों का कीमती सामान गुम होने का खदशा। फेस्को के मुताबिक महकमा रेलवे के जिम्मे 27 लाख रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। बिजली बिल अदा न करने पर टोबा रेलवे स्टेशन की बिजली मुनक़ता। टोबा का रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूब गया, वॉशरूम बंद, पीने का पानी भी नायाब हो गया। अंधेरे के बायस मुसाफिरों का सामान गुम होने का खदशा। रेलवे की जिम्मे 27 लाख से ज्यादा बिल वाजिबुल अदा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल महकमा फेस्को का ये कहना है कि टोबा टैक्सिंग में महकमा रेलवे के जिम्मे 27 लाख रुपए से जायद बिल जो है वो वाजिबुल अदा है और ये बिल अदा नहीं किया गया, जिस पर रेलवे स्टेशन की बिजली काट दी गई। 3 दिन हो गए हैं स्टेशन की बिजली नहीं है और यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पूरा स्टेशन इस वक्त जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। मर्द खवातीन बच्चे मुसाफिर यहाँ पर आते हैं तो उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर उनका कीमती सामान जो है वो भी गुम होने का खदशा पैदा हो चुका है। इस बड़े पूरे स्टेशन पर, पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई एक भी जो है वो लाइट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर मौजूद है, परेशान है, अपने मोबाइल फोन की लाइट की जो है उसी से जो है वो मदद लेते हैं और रास्ता भी तलाश करते हैं। इसी वाले से जो मुसाफिर मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन पे तो लाइट नहीं है, किस तरह आप लोग अपना सामान पड़ा हुआ है, लेकिन इधर लाइट लोइट कोई नहीं है, बस पूरा स्टेशन की लाइट बंद है। वॉशरूम जाने की भी तंगी है, मोबाइल की टार्च से देखते हैं सामान अपना इधर उधर से, बड़ी परेशानी हो रही है ये। तो आपका जो है वो मोबाइल फोन की रोशनी की वजह से आप बकायदा इसमें सर्च कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मोबाइल फोन की रोशनी से देखते हैं। इधर ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, बस ये इधर बाकी फैमिली मेंबर बैठे हैं उनको देखते हैं। अच्छा बिल्कुल, जो मुसाफिर हैं बिलाशुबा मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त जो है वो मेरे पीछे जो है बुकिंग ऑफिस है, बुकिंग ऑफिस में काम करने वाले अमले को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो लाइट्स नहीं है। अपने मोबाइल फोन की मदद से ही उन्होंने काम किया। नायब स्टेशन मास्टर का दफ्तर हो या स्टेशन मास्टर का दफ्तर, तमाम तर दफातर जो है वहाँ पर लाइट नहीं है। इस हवाले से पर जो पीने का पानी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वॉशरूम जो है वो बंद है। अभी ट्रेन कुछ देर पहले यहाँ से गुजरी तो मुसाफिरों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। उनके बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग जो है बाकायदा गिरे भी हैं और बाहर जो पार्किंग स्टैंड है वहां पर भी लाइट नहीं है। लोगों ने अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियां पार्क की हुई हैं, वहां पर भी अंधेरा है और इस बड़े स्टेशन पर कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। वैसे भी स्टेशन पर से 2 पुलिस एहलकारों की जो है वो ड्यूटियां लगाई गई हैं जो रेलवे पुलिस के, लेकिन इस वक्त बड़े जो स्टेशन पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बिलाशुबा यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर होने चाहिए। तमाम रेलवे हुकाम का ये कहना है कि उन्होंने अपने जो अफसरान है उनको आगाह किया है कि बिजली का बिल जब जमा करवाने के लिए रकम जो है वो जारी की जाए, लेकिन अभी तक रकम जो है वो नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको मुनक़ता किया गया। पूरे स्टेशन पर इस वक्त भी जो है वो अंधेरा है, लोग मुश्किलात में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम फेस्को काम का ये कहना था कि महकमा रेलवे के जिम्मे 27 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। जैसे ही बिल अदा किया जाएगा यहाँ पर कनेक्शन जो है वो बहाल कर दी जाएगा। और दूसरी जानब यहाँ पर जो वॉशरूम्स है वहाँ पर पानी नहीं है, पीने का साफ पानी यहाँ पर नहीं है। मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा दिन है यहाँ से जो ट्रेनें गुजर रही हैं उसके हवाले से आगाह कर दूं कि यहाँ पर उन ट्रेनों को बकायदा सिग्नल नहीं मिलता क्योंकि लाइट्स नहीं है और वो सिग्नल्स भी जो है वो ऑन नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर जो कांटा मैन है उनको मैनुअल तरीके से जो है वो रेलगाड़ियों को जो है वो सिग्नल देना पड़ रहा है सबज के यहाँ से गाड़ियां अपनी क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी देर तक जो है वो गाड़ियां शहबाज चौक फाटक के पास खड़ी भी रही और उनको बाद अजहां सिग्नल डाउन नहीं हुआ, उनको मैनुअल तरीके से सिग्नल दिया गया और तब फिर ये गाड़ियां स्टेशन से गुजारी गई। तमाम मुसाफिरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दी जाए कि टोबा टैक्सिंग का ये बड़ा स्टेशन है जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग सफर के लिए इस स्टेशन का इंतखाब करते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, चोरी की वारदातें भी हो सकती हैं। तमाम इस हवाले से स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम करने चाहिए। जी शुक्रिया। मुबश्शिर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। घरेलू कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सार्फिन की सुनी गई। फेस्को डिमांड नोटिस के इजरा की ऐप एक्टिवेट कर दी गई है। 3000 से ज्यादा ऑनलाइन डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बिजली कनेक्शन जो है वो कटने से परेशान घरेलू सार्फिन के लिए अहम खबर है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से 70% बिजली का बिल जमा होने पर जो कटे गए कनेक्शन हैं उनको बहाल करने की हदायत जारी की गई हैं। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बिजली के बिलों की इकसात पर मुकम्मल तौर पर वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से पाबंदी आयद है और अब जो है वो सार्फिन जिनके बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं, घरेलू सार्फिन, वो अपना 70% बिजली का बिल जमा
करवा के अपना कनेक्शन जो है वो बहाल करवा सकते हैं। सार्फिन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है और ये शिकायत की जाती हैं कि बिजली के बिलों के एक साथ पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद शहर भर में सैकड़ों घरेलू सार्फिन के कनेक्शन जो है वो बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर काटे गए थे और अब जो है वो 70% तक सार्फिन जो है वो अपना बिजली का बिल घरेलू सार्फिन अगर जमा करवाते हैं तो उनके बिजली के कनेक्शन बहाल करने की जो हदायत हैं अब ऐसे लिए हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में लोकल गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ के किराए का जायजा लिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद ने लोकल गवर्नमेंट अराजी के रेंट असेसमेंट की तफसीलात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी ने ज़ेर अल्तवा अराजी की रेंट असेसमेंट मुकम्मल करने की ताकीद कर दी है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास, कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में लोकल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ के किराए का जायजा लिया गया। लोकल गवर्नमेंट अराजी के रेंट असेसमेंट कमिश्नर ने तफसीलात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर अल्तवा अराजी की रेंट असेसमेंट मुकम्मल करने की ताकीद। सर्किट हाउस अपग्रेड, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, ये कहना है चीफ सेक्रेटरी का। जंग म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से स्कूलों पर सैनिटेशन फीस आयद कर दी गई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी से मुलाकात। अहदेदारान ने सैनिटेशन फीस पर तहफ़्फ़ुज़ात और कमी करने का मुतालबा कर दिया है। इंतजामिया ने स्कूलों की माली हालत के मुताबिक कमी बेशी का अंदिया दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी के रेवेन्यू को जो है वो बेहतर करने के हवाले से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है वो फ़ीस आयद की जा रही है। आज इस हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर के सामने रखे गए हैं। हमारे साथ मौजूद में से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि फ़ीस लागू भी हो और जो स्कूल एसोसिएशन हैं उनके लिए जो है वो काबिल बर्दाश्त भी हो? जी, जैसा कि आपको पता है कि जंग में हमारे नया सीवरेज डल रहा है, जो कि वर्ल्ड बैंक से जो है तकरीबन 2.5 अरब का सीवरेज है। उसके अलावा जो है हमारी रोड्स पे काफ़ी काम हो रहा है और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ की तरफ से भी हमारा जो जोन 2 पे बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। अब इशू ये है कि हम इसको सस्टेनेबल बना सकें, क्योंकि नई मशीनरी भी आ चुकी है, हमारे एक्सपेंडिचर्स मल्टीपल टाइम बढ़ चुके हैं और इसको बेहतर के लिए हम सैनिटेशन और सीवेज हमने अभी टैक्सेशन में भी इंट्रोड्यूस कराया। और जिस तरीके से है कि अब किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम मुख्तलिफ जो है मुताबिक फ़िक्र के लोग जो हैं हमारे, जिस तरह स्कूल जो हैं एसोसिएशन से बात हुई, फिर हमने बाहर के लोगों को रखे हैं, हमने ताजरान को और बाकी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को भी अपने साथ बुलाया। उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि अगर तो हम इसमें टैक्सेस नहीं लगाते, तो अगर टीएमए में एमसी में इनके रेवेन्यू में इंक्रीज़ नहीं आती तो ऑफ कोर्स कि ये गाड़ियाँ चलना मुश्किल हो जाएंगी और इवन यूटिलिटी के बिल भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन जो है पेंशनरी शेयर बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है सैलरीज एहलकारों की बढ़ती जा रही है और रेवेन्यू जो है हमारे उस तरीके से नहीं बढ़ रहे। तो अब बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव अभी तक फीडबैक आया पब्लिक को और ये अभी हम इसका अभी थोड़ा इस पर वर्किंग करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है इसका एक ड्राफ्ट बना के जो है अप्रूवल जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के लिए भेजा जाएगा और वहाँ की अप्रूवल के बाद फिर बाकायदा मज़ीद इतराज़ात लेके इसको जो है इस हवाले से तमाम शहरियों की और कारोबारी हजरात की जिम्मेदारी है कि वो इस। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के सनती इदारों का मजदूरों को कम अज कम उजरत देने से गुरेज। महकमा लेबर और दीगर इदारे कम अज कम उजरत के अहकाम पर अमल कराने में नाकाम। महंगाई के दौर में भी कम अज कम उजरत कहीं 20 और कहीं 25,000 रुपए दी जा रही है। सनती एसोसिएशन फी मजदूरों की उजरत बढ़ाने के मामले पर खामोश है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, साइजिंग सेक्टर के हवाले से बात करें, पावर लूम सेक्टर के हवाले से बात करें, होजरी सेक्टर के हवाले से बात करें या फिर किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी सेक्टर को उठा लिया जाए, कहीं पर भी इस वक्त कम अज कम उजरत के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त खास तौर पर जो गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम उजरत 32,000 रुपए है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में इंतजामिया, लेबर डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ मुतलका इदारे जो है वो नाकाम दिखाई दे
दे रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त जितने भी इदारे हैं, सनती इदारे हैं, वहां पर कहीं पर भी 32,000 रुपए कम अज कम उजरत जो है वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मजदूर का चूल्हा इस वक्त जो है वो ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। 32,000 रुपए, महंगाई इतनी है कि 32,000 रुपए जो कम अज कम उजरत पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक उसमें गुजारा करना भी मुश्किल है। और इंडस्ट्री की सूरत हाल है कि वो 32,000 भी पूरे नहीं दे रही है। कहीं पे 25 और कहीं पे 22 और कहीं पे 20,000 रुपए कम अज कम उजरत जो है वो दी जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त मजदूर तबका जो है वो महंगाई की चक्की में पिस चुका है। हर आने वाले दिन के साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो एक चीज नहीं बढ़ रही वो है मजदूर की तनख्वाह, मजदूर की उजरत, मजदूर की आमदनी। जो आमदनी नहीं बढ़ रही है उसकी वजह से मजदूर इस वक्त जो है वो फाका कशी के ऊपर मजबूर हैं। बल्कि इस वक्त सैकड़ों मजदूरों का ये शहर है फैसलाबाद, और यहां पर मजदूर जो है वो बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला है। आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में, अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ती है तो मजदूर सड़कों पर होंगे। मजदूर यूनियंस की जानिब से भी इस वक्त हुकूमत वक्त से, पंजाब हुकूमत से, खास तौर पर वजीर आला मोहसिन नकवी से अपील की जा रही है कि कम अज कम। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिन्योट फूड अथॉरिटी की दूध की चेकिंग के लिए नाकाबंदी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 80 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 28,000 लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग। फूड अथॉरिटी टीम ने 305 लीटर गैर मयारी और मिलावटी दूध मौके पर ज़ाया करा दिया। गवालों को 33,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। चिन्योट में फूड अथॉरिटी की दूध की चेकिंग के लिए नाकाबंदी। दाखिली और खारजी रास्तों पर 80 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। गाड़ियों में मौजूद 28,000 लीटर से ज्यादा दूध चेक किया गया, ये कहना है फूड अथॉरिटी का। 305 लीटर गैर मयारी और मिलावटी दूध मौके पर ज़ाया करा दिया गया। गवालों को 33,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए।